See, the final equation will be, जब आप इस पूरे पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा. आ रहा है सबका? नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दैट. नहीं, you will have twice of x square plus twice into 2 whole square is equal to 16. So twice of whole square plus 8 is equal to 16. So the solution will be plus minus 2. कितने का आ गया? Done? सबका हो गया? Last bench? तुम दोनों का हो गया? ठीक है. तुम्हारा लास्ट बेंच क्या नाम है? हो गया? डन? इसमें कोई इशू नहीं थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पे ब्रेक करा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. द x विल बी इन टर्म्स ऑफ n. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज दिस? कौन सी सीरीज है? टेलीस्कोपिक सीरीज है ये. देख रहे हो, 8 है, देन 9 है, 9 है, देन 10 है. सो कैन यू जस्ट स्प्लिट दैट product of 1 by x plus 8 into x plus 9? Can you just split it into two parts, partial fractions? चलो टेलीस्कोपिक सीरीज की क्वेश्चन है. So x will be in terms of n, right? Because there's another variable n involved as the last term. हाँ मैम, मेरे पास तो ये तो ऐसी पेपर है. चलो Can you write the product of 1 by x plus 8 into x plus 9 as 1 by x plus 8 minus 1 by x plus 9? इसमें कोई issue? नहीं? So this term is divided as this. So can you just divide this also? Like, can you just split that also? So it will be splitted as what? 1 by x plus 10, 9 minus 1 by x plus 10, right? Now split every term. Like, go on splitting them. This is known as a partial fraction. जब 11th में जाओगे तो जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो फिर ये पार्ट आता है partial fraction का. ये मिलेगा, ठीक है. Now you can observe that these terms will get cancelled, right? And what will be left over the last part? 1 upon x plus 8 minus 1 by x plus n is equal to 3 upon 4. Now can you solve this?
Go on, take the LCM. That the final equation? Is that the final equation? मिल गया सबको? Now solve that. बातें नहीं. So 3x square plus 3 into 8 plus nx plus 24n minus 4n minus 32. That is 20n minus 32. मिल गया सबको? किसी को इशू इस स्टेप पे, लास्ट स्टेप पे? तो फिर आप लाइक n इसलिए मैंने इन्वॉल्व किया था ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल लगे, ठीक है, बट वहाँ पे n नहीं दिया रहेगा क्योंकि तुम्हें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी. लेट्स से इफ इट इज डिपेंडिंग अपॉन n देन योर x विल बी अ फंक्शन ऑफ n, राइट. बट IOQ में वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बिकॉज द रेंज इज इन बिटवीन 0 to 99, ठीक है. सो दे मे प्रोवाइड यू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n एंड अप डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू जस्ट सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. कोई इशू इसमें नहीं? डन, सबका आ गया. Let's move to the third one. Okay, fine. You have to find the sum. Now, what does that symbol denotes? Sigma. Sigma stands for what? Summation. Like, so it means that you have to take the sum starting n from 1 to infinity. So just write that in the summation form. Come. Write that in summation form. Start putting the values of n. N is equal to 1, then n is equal to 2, then n is equal to 3. Do it yourself first. नहीं, infinity नहीं होगा, वो 1 by n के terms में, 1 by n में. It won't be infinity. Come on. What will be the first term? Can anyone tell me the first term? T1? 1 by what? 1 by 1 into 2. Now what will be the second term? What will be the second term? 1 by 2 into 3. Then the third term will be 1 by 3 into 4. So the summation will be in the form of 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4, and this will go on, right? Now can you again just observe the pattern of a telescopic series over here? Like it's 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4. So can you just split that again in two parts using the partial fraction? Chalo karo. It will go on like that, right? What will be the last term? This will be your last term. So what will be the left? After taking summation, what you will be getting? क्या बचेगा बताओ जल्दी से देख के. 1 minus what? N plus 1, right. And your n is tending to what? Infinity, right? Your n is tending to infinity. Now what is 1 upon infinity? What is infinity plus 1? So 1 by infinity plus 1 will be equal to 1 by infinity will be equal to 0. So this term will become 0 and your final answer will be equal to what? 1. Getting the point? कहीं पे किसी को problem? किसी step पे देखो एक बार. नहीं? So as soon as you recognize that, okay, fine, we are dealing with a telescopic series, you have to just split that by using the partial fraction in two parts, right?
So telescopic series has this wonderful property that it can be split into two parts, and when you split that in two parts, the terms started getting cancelled out. ठीक है? And then you are left with the first and the last term only. ठीक है? Next question पे चलते हैं. Okay, solve for x. चलो, come on. ये खुद solve करो. That's an easy question. Solve it. So see, you can solve it in a proper approach. What you will have, you will just take the LCM, then you will simplify that, and you will have the value of x. But you can also do some another thing, like you can take 3 by x on both hand sides, then you can just simplify. तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा solve. But ठीक है, solve it and find the value of x. यहाँ तक सबका हो गया, एक बार देखना. ठीक है, इसके बाद क्या तुम कोई कंडीशन लगाओगे या फिर तुम इसी स्टेप से आगे बढ़ जाओगे, ये बताओ. कोई कंडीशन यहाँ पे लगेगा? विल यू हैव एनी कंडीशन आफ्टर दिस स्टेप? So you have a fraction to be equal to 0, right? So you know you have the fraction equal to 0. So you know the fact that a fraction can only be 0 when the numerator is equated to 0. But meanwhile at the same time, जब भी आप अपने numerator को 0 के equate करते हो, you should always have the condition with yourself that x cannot be equal to 2, x cannot be equal to 3, x cannot be equal to 4. Okay? अब देखो ये छोटा सा concept है, एक देखना ध्यान से. ठीक है, let's say we have just a minute, 2x minus 2 and let's say 6, okay, and we have a plus sign. Okay, fine. So you have x minus 2 plus x minus 6, what? हो गया? Attendance done? So see, you have, इधर देखो, you have the equation x minus 2 plus x minus 6 by x minus 2 x minus 4 is equal to 0. Can you find the solutions for me? इसका solution find करना सब कोई जल्दी से. पहले इसको डील करो, फिर उस पर हम वापस बैक आएंगे. What is the solution? It's plus, okay? X minus 2 plus x minus 6. So that is basically 2x minus 8 by x minus 2 and x minus 4 is equal to 0. What is? नहीं. इसके पास कोई solution नहीं होंगे. Let me tell you why. नहीं. हाँ ठीक है, वो 0 होगा. But when you will make that 0, क्योंकि तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं. ठीक है, देखो मैथ्स एक ऐसा चीज होता है ना, उसमें अगर तुम्हारे पास कोई भी डेटा है, बी इट इन गिवन इन क्वेश्चन और व्हाइल यू आर सॉल्विंग द सोल्यूशन, तुम्हारे पास अगर कोई भी डेटा है तो यू कैन नॉट इग्नोर योर डेटा. तुम अपने डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते हो. जब तुम यहाँ पे अपने न्यूमरेटर को 0 बनाते हो तो तुम डायरेक्टली क्या करते हो, अपने डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हो. ठीक है, 10th तक तुम्हें इसमें कोई इशू नहीं होगी. जब तक तुम 10th क्लास में रहोगे ऐसे क्वेश्चंस नहीं देते हैं वो. बट जब तुम 11 पे जंप करोगे, ये सबसे सबसे बेसिक थिंग होता है जो हम इनइक्वालिटी में सीखते हैं. ठीक है, या फिर हम इक्वालिटी में भी सीखते हैं. तो जैसे ही तुम अपने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को 0 बनाते हो तो तुम्हें ये पता है कि हमें सिर्फ 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर देना है. ठीक है, ये तुम्हें सिखाया गया. बट व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर से तुम्हें ये कंडीशंस निकालना पड़ता है कि ओके फाइन, माई 2x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0, बट वी विल हैव वन कंडीशन दैट
x माइनस 2 कैन नॉट बी 0 एंड x माइनस 4 कैन नॉट बी 0. ठीक है, जो भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में होंगे दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब ऐसा क्यों? लेट्स से तुम्हारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ गया. जब आप 4 रखते हो तो क्या यहाँ पे 0 आता है? x को 4 रखो 0 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या 0 मिल जाता है? क्या 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म? 0 बाई 0 जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है. ठीक है, इनडिटर्मिनेट 7 तरीके के फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, जान लो थोड़ा सा क्योंकि इंपॉर्टेंट है. 7 फॉर्म्स होते हैं जो इनडिटर्मिनेट होते हैं. अब इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, एंड मैथ्स में ये 7 फॉर्म से तुम्हें बचना होता है. बचना का सेंस क्या होता है कि तुम्हें अपने कैलकुलेशन को इस तरीके से करना है कि तुम्हें ये 7 फॉर्म अपने कैलकुलेशन में नहीं मिले. ठीक है, तो जस्ट इन ऑर्डर to ignore, not deal with that 0 by 0 form, we have the condition that the denominators should not be equal to 0. Like the x minus 2 should not be equal to 0 and x minus 4 should not be equal to 0. तो जब इस क्वेश्चन पे तुम डील करोगे तो तुम अपने न्यूमरेटर को जब 0 बनाओगे तो कंडीशंस क्या क्या होंगे बताओ? should not be equal to 0, should not be equal to 0, should not be equal to 0. तो अभी जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, क्योंकि 2x माइनस 8 इज कमिंग आउट. तुमने 2x माइनस 8 को 0 किया तो x तुमको 4 मिल रहा था, बट x 4 मिलने से पहले ही कंडीशन लग जाती है कि यार अपना x 2 और 4 नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज इन द डिनोमिनेटर. क्लियर है पॉइंट? तो आज के बाद तुम कभी भी फ्रैक्शन को अगर तुम 0 के इक्वेट कर रहे हो तो तुम जैसे ही अपने न्यूमरेटर को 0 के इक्वेट करोगे तुम अपने कंडीशंस पे क्या पुट करोगे? अपने कॉपी पे ही साइड पे लिख लो कि x कैन नॉट बी दैट, x एंड कैन नॉट बी दैट. ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करना. क्या आ रहा है आंसर सबका? इसका क्या रिलेशन था इससे? तो इसमें भी मैं ये तुम्हें सिखाना चाह रही थी कि जब तुम इसको बोलोगे तो तुम्हारे एलसीएम में क्या 3 चीज आ रही थी? एलसीएम में 3 चीज आएगी ना, तो तुम्हें ये सिखाना था कि दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था? इसको 0 करो नहीं करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था. तो यू तुम मुझसे पूछ सकते थे कि मैम कोई इफेक्ट तो पड़ ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ा जिसमें वो इफेक्ट कर रहा है. तो इट कैन इफेक्ट, इट कैन नॉट इफेक्ट. तो हमारे लिए तो सेफ गेम ये है ना, हम ये लेके चले कि भाई वो इफेक्ट कर रहा है, तो हम अपना सेफर साइड लेके चलेंगे कि हम अपने डिनोमिनेटर को अज्यूम कर लेंगे दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्लियर है ये वाला कंसेप्ट सबको? बहुत बेसिक और बहुत लाइक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. कर लोगे सॉल्व? टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए. देखो x क्या निकल रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, सॉल्व करो कॉपी पे. आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले या नहीं आया? सॉल्व करूं मैं? बताओ सॉल्व करूं? ठीक है, एक मिनट ना, चलो लेट्स सॉल्व दिस. सो वी विल हैव 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अंडर द कंडीशन that x cannot be equal to 2, x cannot be equal to 3, x cannot be equal to 4. Clear है? ठीक है, now let's solve this. 2x square minus 8x minus 5x plus 20 plus x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So we have the 3x square minus 18x plus 26 is equal to 0, right? So you can use the discriminant rule. You can have the 18 whole square minus 4 into 26 into 3. So you can just have this calculation. You will see that it is a perfect, it will be a perfect square of some number. Okay? Then you will have the alpha as 18 plus under root d by 2a, that is 6, and beta as 18 minus under root d by 2a, 6. निकल गए x के values. ठीक है? ठीक है? अब जब अल्फा और बीटा निकाल लोगे तो वेरीफाई कर लेना कि क्या अल्फा या बीटा में से कोई 2, 3, 4 तो नहीं. अगर 2, 3, 4 है तो यू हैव टू डिस्कार्ड दैट, राइट? लेट्स से कि अगर तुम्हारा ये 2 आ गया तो
this is not going to be the solution. Let's say कि ये 4 आ गया, तो this is also not going to be the solution. So you will say in this case we don't have any solutions. ठीक है, तो तुम्हारे IOQ में ऐसे कर सकते हैं कि they will give you some certain question and then they will say find the number of solutions, right? Find the number of solutions. Let's say तुम्हें यही question मिल गई, find the number of solutions आ गया, और तुम जब solve करो तो तुम्हें अल्फा बीटा 2 और 4 मिल रहा है. तो according to you, you are getting 2 solutions, but they are not the solutions because you have that condition that 2 and 4 cannot be x. तो जैसे ही 2 और 4 आएगा तुम discard कर दोगे and what will be your answer? 0, 0. ठीक है, clear है? चलो next question. Okay, find the roots. ये बहुत easy है, जल्दी करो. कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो इसे जल्दी से. नहीं ऐसे आता है. देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं. लेट्स से यू हैव एनी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, तुम्हारे पास ये है. ठीक है, अच्छा चलो इजी करते, बातें नहीं ओए बातें नहीं, इजी करते इस चीज को. लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है. ठीक है, तुम्हें अपने कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं, तुम आते हो अपने इन दो टर्म्स पे. ठीक है, इन दो टर्म्स में इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. अब तुम्हें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ax होना चाहिए, राइट? 2ax होना चाहिए. a यहाँ पे क्या है? 1 है. सो कैन यू राइट 2 इंटू 1 इंटू 5/2x. तुमने अपने इसको स्प्लिट कर दिया. 2 तुम्हें हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए जो भी तुम्हारा मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इन द सेंस कि जो भी आपकी x की कोएफिशिएंट होगी उसको आपको 2ab के फॉर्म में बनाना है. नाउ जैसे तुमने इसे 2ab के फॉर्म में बनाया, तुम्हारा a ये हो गया और b क्या हो गया? 5/2. ठीक है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 5/2 का होल स्क्वायर. दोनों तरफ प्लस कर दो. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको अपने कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, आप अपने कांस्टेंट टर्म को अपने राइट वाले पार्ट पे लाके छोड़ दो. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, आपको अपने मिडिल जो आपका x के कोएफिशिएंट वाला पार्ट होगा उसको आपको 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जैसे ही 2ab के फॉर्म में तुमने कन्वर्ट किया, गेट योर a एंड b एंड एज सून एज यू गेट योर a एंड b कन्वर्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. राइट, तो जैसे ही तुमने ये किया, तुम्हारा ये क्या बन गया? x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर. राइट, ये बन गया. और यहाँ आपका क्या आ गया? -4 प्लस 25/4 मतलब 21/4 आ गया. ठीक है, तो आपका जो x प्लस 2 आया था, x प्लस 5/2 जो आया था, उसका होल स्क्वायर जो आया था वो आया था 21/4. ये आया था ना. यू कैन ईजिली से दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 21/2. And now you can just take x is equal to plus minus under root 21/2 minus 5/2. So you have your 2 solutions, right? तो इसमें स्टेप है कांस्टेंट को इग्नोर करना है पहले, उसको आपको राइट हैंड साइड पे लाके छोड़ देना है. देन वॉट एवर यू आर हैविंग the coefficient of your x, try to convert that in the form of 2ab. As soon as you converted that in the form of 2ab, get your a and b and then convert that in the form of a square plus b square plus 2ab. तो ये क्वेश्चन को करो जल्दी से. चलो, take your 3 to the right part, it will be minus of 3. Now what you have to do is you have to deal with this term. Now you can see that your ax square a is what? 1, right? So here you can write this as 2 into under root 21/2 into x. So what will be your b? Under root 21/2, right? So अब 21/4 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए. कैसे? सीधे मतलब डिस्क्रिमिनेंट से, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके उससे बहुत ईजी हो जाता है, वो बेस्ट तरीका होता है. पर कभी कभी उसमें क्या होता है कि अंडर रूट आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर बड़े आ गए तो अंडर रूट तुम नहीं निकाल पाओगे. देन ये मेथड यूज हो जाता है. फिर कभी कभी स्प्लिटिंग फैक्टर्स ईजी हो जाते हैं. इस पे स्प्लिटिंग फैक्टर्स नहीं जाएगा. वाई? बिकॉज देयर इज अ सर्ड, राइट? तो स्प्लिटिंग फैक्टर्स में बहुत दिक्कत होगी. तुम्हें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट दिक्कत होगी. चलो जल्दी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें या फिर टाइम दूं? ठीक है, कंसेप्ट देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. ये इजी था. हाँ फाइन, चलिए बहुत इजी. एक बार ट्राई करो खुद से. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स. ओके,
अल्फा और बीटा निकालने के चक्कर में मत रहना, जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट योर इक्वेशंस. आई एम गिविंग यू अ हिंट. If alpha and beta are the roots, then 2 alpha square minus 15 alpha plus 4 is equal to 0. And 2 beta square minus 15 beta plus 4 is equal to 0. Now you have to use this equation over here. Jaldi. Don't try to find the alpha and beta. And there will be one more, alpha plus beta and alpha into beta. These two concepts will be used in this part. Chalo. Are you getting 4 alpha minus 30 to be equal to minus 8 by alpha? Batch, सब बताओ मुझे. 4 alpha minus 30 is coming out to be minus 8 by alpha? या फिर बताओ, explain करूं. And the 4 beta minus 30 is coming out to be minus 8 by beta, right? So 8 power 4 by alpha 4 into 8 power 4 by beta 4. Minus 1 की power 4 will eventually turn out to be 1. So you will have 8 power 8 by alpha beta power 4. Now the alpha into beta is 4 by 2, that is 2, right? So you have 8 power 8 by 2 power 4, right? इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, that will be 24 by 4. 2 power 20 will be your answer. देखो एक बार सबका आ रहा है. 2 power 20 किसका आ रहा है? कैसे? 8 क्यों होगा? 4 by 2 होगा ना. हाँ, 2 की पावर 4 हो जाएगा. ठीक है. किसी को कोई दिक्कत किसी स्टेप में? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये. तुमने सिर्फ अपने अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स की इस स्टेटमेंट की तुमने यूज करी, राइट? तुमने सिर्फ उस स्टेटमेंट को यूटिलाइज करा. तो सी दैट्स द मैजिक ऑफ द मैथ्स कि आपका जो भी डेटा रहता है, लाइक व्हाटएवर इज रिटन दैट हैज सम वैल्यू. मैथ्स में कोई भी स्टेटमेंट रिटन हो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो. जैसे इंग्लिश में होता है ना, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ठीक है, इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स होते हैं, तो उनकी नहीं होती. पर अगर मैथ्स में उसने ये बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, मीन्स दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी यूज्ड समवेयर. तो इसलिए मैथ्स में किसी डेटा को छोड़ना मत. डोंट नेग्लेक्ट एनीथिंग कि अरे चलो ठीक है. ठीक है, चलो सेम टाइप ऑफ है, एकदम सेम है ये. जल्दी से करना. इसमें ये यूज होगा. Make the equations a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Take the alpha out, then it will be minus c by alpha minus c by beta. Then just put that over there. Minus c by alpha power 4 minus c by beta power 4. It won't be alpha 4 beta 4, it will be c4, I think. Yeah. So it will be like that. Then you have to have some calculations and get the value of alpha 4 plus beta 4. Sum of the roots and product of roots. जल्दी करना सब कोई. प्रॉब्लम आ रही है? Should I solve? Now find the value of alpha 4 plus beta 4. यहाँ तक आगे सब कोई? ठीक है. Now let's find alpha 4 plus beta 4. So alpha 4 plus beta 4 can be written as alpha square plus beta square whole square minus 2 alpha square beta square. Clear है? कोई problem? नहीं. Now the alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, right? So the alpha plus beta is what? Minus b by a, and the alpha into beta is c by a. Got it? Now you have to just put this value over here, square it, and then alpha square plus beta square is alpha beta whole square. So here minus 2 c square by a square. Clear है कैसे substitute करोगे? अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कैसे निकालोगे? क्लियर है सबको? सम एंड प्रोडक्ट को यूज करके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. हाँ चलो ये क्वेश्चन देखो सर. चलो
ये अच्छा क्वेश्चन है। और अगर नहीं बना तो फिर होमवर्क पे लो, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करूँ, मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, आंसर नहीं बताऊंगी इसका। टेस्ट में था ये, कोई इस टाइप का नहीं था, उसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा नहीं था। चलो कम ऑन जल्दी, आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग ओवर देयर। एक मिनट, क्वेश्चंस मेरे को देखने दो, एक पार्ट मिसिंग है। शीट नहीं मिली है तुम लोग को अभी तक? मैं देखती हूँ। -2 इज ऑल्सो देयर, ओके। अब करो, ठीक है, अब हो जाएगा। सो द होल इक्वेशन इज 2x³ -4x² -2x -2 is equal to 0. So you have to find the value of this. Sorry? हाँ हाँ, alpha, beta and gamma are the roots. हाँ, -2x -2 is equal to 0. First of all, substitute the values of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha and then substitute the value of alpha beta gamma. तो उससे आपका एक स्टेप आगे आएगा. Then after substituting, simplify that. Simplify करो. Simplify करने के बाद तुम्हारे alpha beta निकल जाएंगे बाहर. And then they will be cancelling out, cancel होंगे. Then you can take the LCM. ये एक अप्रोच है. दूसरा अप्रोच है कि यू कैन जस्ट डिवाइड दैट बाई 2α³ -4α² -2α -2. उससे आप डिवाइड कर सकते हो सच दैट दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लीनियर फॉर्म, राइट. वो लीनियर फॉर्म में हो जाएगा. तो लीनियर फॉर्म में जब आप लोगे एलसीएम तो बहुत ईजी होगा. तो दोनों स्टेप से करो, देखो जिससे ईजी होगा. ट्राई करो. इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगी. सो व्हाट इज अल्फा बीटा गामा? 1. And alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is what? It's -1. हाँ बोलो, कौन सा? ठीक है. So you can just substitute these values first. जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है. उसके बाद इधर यू कैन टेक द एलसीएम. तुम्हारे कॉमन्स निकल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम किया गया कि कॉमन निकल जाएगा. ऊपर भी कॉमन आएगा, नीचे ऊपर भी कॉमन आएगा, ठीक है. एंड देन नीचे भी कॉमन आएगा. दे विल कैंसल आउट और यू कैन जस्ट टेक देम कॉमन एंड देन यू कैन टेक द एलसीएम एंड यू कैन सॉल्व दैम. ठीक है, आ जाएगी. इसको कर लेना, या फिर दिक्कत होगी तो फिर कनेक्ट कर लेना मुझसे. किससे? लाइक अल्फा 4 बाई बीटा क्यूब से. बट होगा नहीं ना, ये बीटा क्यूब है, ये अल्फा 4 है, बहुत दिक्कत इससे. हाँ हाँ, वो तो कर सकते हो आप, वो तो एक स्टेप है ही. वो तो मैंने बताया कि यू कैन जस्ट डिवाइड दैट, देन यू विल गेट अ लीनियर टर्म. क्योंकि जो रिमाइंडर, क्योंकि ये 4 ऑर्डर का है, वो 3 ऑर्डर का है, तो यू विल गेट अ लीनियर टर्म एज द रिमाइंडर. ठीक है. एंड जो आपके कोशेंट होंगे वो तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये पार्ट आपका 0 है. ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो. ठीक है, दिस क्वेश्चन. हाँ चलो, ये देखो जरा. सर ने कुछ पढ़ाया था f2i, फंक्शन 2i, फंक्शन -2i, याद है? वही पार्ट यूज होगा इसमें. नहीं, इसमें लॉग नहीं लगेगा. इसमें लॉग नहीं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे लॉग लगेगा. इस पे लॉग नहीं लगेगा. इस पे फंक्शन ऑफ 2i, फंक्शन ऑफ -2 आएगा. आई एम गिविंग यू एज अ हिंट. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज इन मल्टीपल ना, नॉट इन एडिशन. लॉग जो होता है डिफरेंशिएशन इसलिए यूज होता है कि वो एडिशन में बदल देता है चीज़ों को. चलो ये एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले ट्राई करो. f2i, f -2i, दैट्स द हिंट. तुम्हें कहीं दिख रहा है अल्फा प्लस 2i, अल्फा -2i का फॉर्म, बीटा प्लस 4i, बीटा -4i का फॉर्म, आयोटा? आर यू अवेयर ऑफ आयोटा? सर ने बताया है, सर ने क्लास में करवाए भी हैं. Okay, fine. So alpha square plus 4 can be written as alpha plus 2i into alpha minus 2i. Right? ये ठीक, ये क्लियर है कि कैसे होता है? सी, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. ठीक है. तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर होगा?
सॉरी प्लस ऑफ आई स्क्वायर होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. सो ना, so x is equal to plus minus I, right? So alpha square plus 4 can be written as alpha plus 2i into alpha minus 2i. Similarly, beta square can be written as beta plus 4i into beta minus, bolo, 4i, and the gamma square plus 4 can be written as gamma plus 4i into gamma minus 4i. ठीक है. Now, we are having the equation 2x cube minus 4x square plus x plus 1 is equal to 0. ठीक है. So the fx can be, if alpha beta gamma are the roots, assume that alpha beta gamma are the roots, so it can be written as x minus alpha, x minus beta and x minus gamma. Any problem? नहीं, ठीक है. ठीक है. 2 into x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. This can be written as minus 2 into alpha minus x, beta minus x, and then what will be there? Gamma minus x, right? So can you write fi by minus 2 as alpha minus I, 2i, beta minus 2i and beta plus gamma minus 2i? Can you write this? F of 2i by minus 2 is alpha minus 2i, beta minus 2i, gamma minus 2i. Similarly, can you write f of minus 2i by 2 as alpha plus 2i, beta plus 2i and gamma plus 2i? Fine. So you have f of 2i by 2, minus with a minus sign, right? And minus of f of minus 2i by 2 is equal to alpha plus 2i, it will be alpha minus. Yeah, alpha minus 2i, beta minus 2i, gamma minus 2i. And then it is what? Alpha plus 2i, beta plus 2i and gamma plus 2i. Now when you multiply the equation number 1 and equation number 2, are you getting the RHS as alpha square plus 4, beta square plus 4 and gamma square plus 4? ये क्लियर है कैसे हो रहा है? ये तीन चीज तुम अपने राइट हैंड पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा माइनस 2i इंटू अल्फा प्लस 2i विल बी व्हाट? अल्फा स्क्वायर प्लस 4. बीटा माइनस 2i, बीटा प्लस 2i will be beta square plus 4. Gamma minus 2i, gamma plus 2i is gamma square plus 4. So here it will be what? F of 2i by 2 into f of minus 2i by 2. बट हमें क्या निकालना है? इसका इन्वर्स. अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 by f2i into f minus 2i. So this will be equal to what? This value. Clear है? ठीक है. और तुम्हारा fx क्या था? 2 into that part all which is equal to 2x cube minus 4x square plus x plus 1. So अब तुम लोग को मुझे बताना है f2i की वैल्यू एंड f minus 2i की वैल्यू. जल्दी से कैलकुलेट करो. f2i और f minus 2i कैलकुलेट करो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f2i. किसी से भी मैं पूछूंगी उठा के, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ f2i? याद नहीं है? पूरा एकदम भूल चुके हो ना सारे चीजें तुम लोग. व्हाट इज आई क्यूब? नहीं याद है? चलो इधर देखो. I square is equal to minus 1. So I cube will be equal to I square into I. So minus 1 into I. So which is equal to what? Minus of I. Now what is I for? I cube into I. So minus of I into I, that is equal to minus I square, which is equal to 1. Clear है? So the value of I is equal to I square is equal to minus 1, I cube is minus I and I4 is 1. ठीक है? इतना ही तुम्हें याद रखना है. So पहला है 2 into 8i cube minus 4 into 4i square plus I plus 1. So 16 I cube की वैल्यू क्या है? Minus I. Then what is the value of I square? Minus 1. So it will be minus 16. Then what is I? Then plus 1. So it is what?
-15 -15i आ रहा है सबका, -15 -15i. नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f -2i. बातें नहीं, देखती हूँ. Wait a minute, it will be twice of I. नहीं, twice of I होगा ना, वहाँ पे x है तो 2i आएगा ना. इसको सिंप्लीफाई करो. 16i plus 16 plus 1 minus 2i. So it will be 14i plus 17 and I think minus 14 plus 17 something that will come. I वाला पार्ट नहीं पता, आयोटा क्लियर नहीं है क्या? एक बार बोल बताओ तो मुझे, आयोटा क्लियर नहीं तो फिर बताती हूँ. हाँ क्लियर है? लास्ट बेंच नहीं है तो बोलो, कुछ तो बोलो यार, क्या हो गया? नहीं आ रहा तो फ्रैंकली बोलो नहीं आता है मैम, बताओ फिर से. आ जाओ, देखो आयोटा क्या होता है. Okay, fine. Let's start with a question. Let's say x plus 1 is equal to 0. I'm asking for a solution of this equation where x belongs to natural number. Where x belongs to natural number. English पे काम करिए अपनी सब कोई. I'm asking you the solution for this equation where x belongs to natural number. No solution. ठीक है? हर एक चीज पे ध्यान दो. ठीक है? So x came out to be -1 and we know that -1 does not belong to natural number. So ma'am, phi is the answer for your question, that there doesn't exist any solution for x plus 1 is equal to 0 when you're asking that x belongs to a natural number. Fine. Can you tell me x square plus, tell me the solution of x square minus 1 is equal to 0. Plus minus 1? ठीक है. Now tell me the solution for x square plus 1 is equal to 0. When I'm talking, let's say x square plus 1 is equal to 0 and I'm talking about x in the real number system and talking in the real world. No solution. But if I said that, okay fine, I expanded my real number system to the complex part also, then what is the solution? Plus minus I. ठीक है? Plus minus I is your solution. तो इतना तो तुम्हें क्लियर है कि ठीक है, अपनी आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1. ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 10th में हो ना? 10th में हो? अभी 11th में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तो ध्यान से सुन लो. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1. ठीक है? आई की पावर m मतलब आई की कोई भी पावर. आई की कोई भी पावर सिर्फ 4 वैल्यूज ले सकती है, सिर्फ 4. +1 -1 प्लस आई माइनस आई, सिर्फ 4 वैल्यूज लेगी. ठीक है? एक चार्ट बना लो अपने कॉपी पे. ये बना लो पहले. जल्दी, कम ऑन. सो हमने डील किया कि ओके, आई स्टैंड्स फॉर द आयोटा एंड आई इज द अंडर रूट ऑफ -1, विच मीन्स दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. whatever power we will give to the I will only reflect 4 solutions to us. I minus I plus 1 minus 1. ठीक है? ओके. तो बच्चे ये बोलते कि मैम हम ना I की पावर 8, I की पावर 10 ये सब तो कैलकुलेट कर लेंगे आराम से. ठीक है? कैसे करेंगे? I की पावर 8 का मतलब हो गया I की पावर 4 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर मतलब 1. पर मैम अगर आपने बोल दिया 1 2, इसकी वैल्यू कैसे करें? तो बहुत बड़ी है. हाँ, ये तो बहुत बड़ी है. ठीक है? तो इसको कैसे करते देखो. I की कोई भी पावर आए, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, उसको 4 से पहले डिवाइड करो. 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आए, लेट्स से अगर तुम इसको 4 से डिवाइड करते हो तुम्हारा रिमाइंडर 3 आता है, लेट्स से 3 आता है, तो दिस बड़ा सा इक्वेशन और वट एवर एक्सप्रेशन इज दिस गेट कन्वर्टेड इन I की पावर 3. एंड यू नो I की पावर 3 इज माइनस ऑफ I. तो तुम्हें सिर्फ I के 4 पावर्स रटने हैं. I की पावर 1 इज I का होल स्क्वायर इज -1, I का क्यूब इज -I एंड I का पावर 4 इज इक्वल टू 1. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 पावर्स ओनली. एंड वेन एवर यू आर डीलिंग with like big powers of I, you have to just divide the whole by 4. Whatever remainder you will get, you will convert the whole like equation or whole expression to I की power that remainder.
राइट? तो ये होता है तुम्हारा आयोटा, तो तुम तो फिर आराम से इसको कर सकते हो। क्लियर है अब कंसेप्ट ये वाला? क्लियर है आयोटा वाला? ऐसा लग रहा कुछ नहीं पढ़े हो। ये करो जरा, ये लॉग वाला, पता नहीं ये कर पाओगे या फिर नहीं। रिवीजन नहीं करा क्या इसका? क्वाड्रेटिक का रिवीजन नहीं करा किसी ने भी अभी तक? चलो ये अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, इट्स गिवन दैट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। ट्राई टू सॉल्व दिस। अल्फा बीटा गामा आर द रूट, सेम फॉर्म में सॉल्व होगा। इसमें आई नहीं आएगी, इसमें आ जाएगी F9। ठीक है, तुम पहले 2x³ प्लस 3x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को कन्वर्ट करो अपने fx में, ट्वाइस इंटू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, देन पुट योर x इज इक्वल टू 9, टेक द लॉग, हैव द डिफरेंशिएशन। कुछ याद आ रहा है? सर ने करवा रखा है सेम क्वेश्चन। हाँ, 6 into f9 f-9 by f9. The solution is 6 into f9 by f-9, where fx is equal to 2x³ plus 3x² minus 4 is equal to 0. So you have to have the differentiation, you have to put the value 9 over there. नहीं हुआ? चलो होमवर्क डालो फिर नहीं हुआ तो। सॉल्यूशन बता देती हूँ, 6 into f dash of 9 by f of 9, where your fx is equal to 2x³ plus 3x² minus 4 is equal to 0. You will get the sheets. ठीक है, this is your solution. Now next question. I hope ये कर लोगे। ये करोगे? एटलीस्ट ये तो करो। चलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पावर सम। एन के इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के प्लस गामा के। याद आ रहा है कुछ? n1 is alpha plus beta plus gamma, n2 is alpha square plus beta square plus gamma square. नाइन बाई 4 बोल रहे बच्चे। अच्छा हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 9/4। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। शाश्वता इज देयर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालो। चलो जल्दी। इट विल बी 9/4 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 2/4। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। हाँ, न्यूटन से भी कर सकते हो। दैट आई थिंक दैट विल बी इक्वल टू an1 समथिंग, वो पूरा प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा। हाँ, इस पे जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी ये चारों सॉल्व करो अभी, सबके आंसर्स आने चाहिए। सिक्सटी 65/16 क्या आ रहे हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या है? 65/16। फाइंड द ए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। चलो जल्दी, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू। अल्फा क्यू प्लस बीटा हो गया? क्यू वाला हो गया? नहीं हुआ? क्यू फॉर्मूला लगाओ। नोट्स है ना सर के? एवरीबडी हैज द नोट्स। नोट्स पलटो, चलो पीछे करो नोट्स। फाइव 113/64 आ रहा है क्या? हाँ सर,
अच्छा अटेंडेंस शीट, वेयर इज द अटेंडेंस शीट, कहाँ है? चलो जल्दी नोट्स, टर्न डाउन योर नोट्स. पावर सम वाला टॉपिक मिला सबको ही को? पावर सम वाले टॉपिक्स मिले? हैव यू द फॉर्मूला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज कमिंग आउट टू बी 513/64. किसी का आया 513/64? फाइव वन थ्री आ रहा है शायद, पता नहीं. अब ये तो बता रहे ऑनलाइन में बता रहे 513/64 है. अब तुम लोग बताओ क्या आ रहा है. पावर सम की पेजेस मिले, नोट्स मिले, फॉर्मूलाज वहां से लिखो, उठाओ फॉर्मूला. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 9/4. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर विल बी इक्वल टू alpha plus beta plus gamma whole square. You can also use the power sum formula, minus twice of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, right? Now you have the alpha beta gamma as what? इनका तो वैल्यू 9/4 है एंड इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 2/4, मतलब 1/2. तो आप वहाँ से पुट करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल सकते हो. देन अगेन फॉर द क्यूब वाला पार्ट, इधर यू कैन गो बाय द पावर सम फॉर्मूला जो कि आपका ए बी सी के टर्म्स में होता है, an1 प्लस bn2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0. ये है, यही आती 2c हो जाता है उसमें. एंड लास्ट में वाले पे आपका क्या आ जाएगा, 4 वाले पे d इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो उस तरीके से तुम निकाल सकते हो ये चारों को. इसको भी लिखो. ये जो पेजेस सर ने करवाए उस पर जाके एक बार देख लेना, फॉर्मूला सारे लिखे हुए, बस फॉर्मूला डालना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ चलो ये जल्दी. अगेन न्यूटन पावर सम. So you have the 2n square minus 4n plus 9 is equal to 0 as the equation where pk is equal to alpha k plus beta k, right? So you have to find the value of 2p10 minus 4p9 by 4p9 plus 18p7. बहुत easy है, जल्दी करो. And second one this. Both are very easy. क्या? So see, 2p10 minus 4p9 plus 9p8 is equal to 0. ठीक है? And then 9 and 7 are there. So 2p9 minus 4p8 plus 9p7 is equal to 0. Because you are having the degree of the equation as 2. ठीक है, तो जब आप पावर सम में देखोगे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ता है कि जब सेकेंड है तो फोर्थ के बाद क्या होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, देन दे फॉर्म लाइक 10, 9, 8, 7, 6 है, वैसे होता है. सो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली सी 2p10 minus 4p9 is coming out to be minus 9p8, right? And then from this equation, your this part 2p9 plus 9p7 is coming out to be plus 4p8, right? So 4p9 plus 18p7 will coming out to be 8p8. So is this exactly the same thing? 4p9 plus 18p7. So that is 8p8 and this is the same thing. So that is minus 9p8. So you will put minus 9p8 by 8p8. So minus 9 by 8. I told बहुत easy question है. हाँ, I told you बहुत easy. चलो find this one. Same. जल्दी करो, p8 के टर्म्स में एक्सप्रेस करो. 2p9 plus 9p7 will be equal to 4p8, 1/2. So 1/2 will be the answer. Everyone got minus 1/2? आगे सबका 1/2? चलो next question. Okay, again the question is for the power sum. You have to find n1, n2, n3, then n3 plus n2 and n4 plus n3. So n1, n2, n3, then n4 and then these two. चलो जल्दी करो.
alpha plus beta, alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube. And as the equation, order of the equation is what? 2. So it can have at max 2 roots. So alpha and beta are given to be the roots. N1 is alpha plus beta minus 4 by 2 minus 2. Alpha square plus beta square will be what? Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So it will be 4 minus 2 into 5, 4 minus 10 minus 6. So first answer is minus 2, then minus 6. Find N3. Then find the N4. Minus 6, I think. Four minus, wait. 4 minus 10 minus 6. Find the value of alpha cube plus beta cube. Find the value of alpha cube plus beta cube. Class, jaldi. Find the value of 2n3 plus 10n2 then. And then go for the 8n4 plus 40n3. चलो मैं सबकी कॉपी पे देखूंगी आके अब. जल्दी करो, I'll just come and see. N1 is what? Alpha plus beta. N2 is what? Alpha square plus beta square. Sorry? मतलब AC का टेम्परेचर बढ़ाओ. कहाँ पे? D में? Okay, and then you are telling 2n4 ठीक है, हो सकता है, पता नहीं. अगर n4 नहीं है तो भी क्या, n3 तो तुमने निकाल लिया, तुमने n2 भी निकाल लिया, वैसे भी निकाल सकते हो. बट अगर तुम फॉर्मूला से पुट करना तो हो सकता है 2n4 हो. मिस्टेक. जल्दी, I'll come and see. कॉपी पे करो कंप्लीट सबको ही. (22) people are saying 22 आ रहा है. किसका 22 आ रहा है? The first one will be -2, then I think n2 will be -6. For n3 they are telling it to be 22. Calculate the n3 value of n3 last bench. -96 आ रही है. अच्छा, E. What for C? What's the value of n3? They're telling 22. Calculate the value of n1, n2, n3 I have done for you. Calculate n1, n2 and then D and E. Come on, I'll come and see. जल्दी करो. If done, then do let me know. Sorry? किसकी आ रही है? What's the value of D last bench? D क्या आ रहा है? -16. 2 into n3 is 44.
10 into minus 60, 44 minus 60, minus 16. ठीक है. Now calculate the value of n4. Come on. Seven 52. नहीं. See, n3 is coming out to be 22. So it is 2 into 22 is 44 minus plus 10 into minus 6. So 44 minus 60 minus of 16. E की मैं कैलकुलेट करती हूँ. So let's calculate the n4, okay? Now what is alpha square plus beta square? What was n2? Minus of 6. 36 minus 2 into what is alpha beta? 5. So n4 is coming out to be 26. So this will be 8 into 26 plus 40 into n3. n3 was what? 22. Calculate that. 8 into 26 plus 40 into 22. 768 they are telling. Will it be 6 8 48? Yeah, it will be about like that only. Done? Next question. If alpha, again same type of question. If alpha and beta are the roots of equation this, find the value of this. अब ये करो. अब इस बार खुद से करो. चलो सारा जल्दी से. You have done this earlier. Right now. जल्दी. देखती हूँ. एक लेके डिस्ट्रीब्यूट मतलब अपने पे लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दो. लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दो. लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सॉरी, आई एम सो सॉरी. n1 will be minus 9 na. n2 will be I think so n1 is minus of 9, n2 is 93. Calculate the n3. Then calculate the n3 plus 5 n2 plus 9 n1, and last but not the least is n2 plus 5 n1. Come on. It's the same sheet which we are dealing with, right? So you can just go with the sheets in your home and can have the solutions. Okay. Last bench. The next question. Okay, fine. We are having more questions. Last bench. Done. Sorry. Last bench कहाँ पहुँचे तुम दोनों? N2. Come on. Hurry up. N3 जल्दी करिए. Do the C, D and E part.
आई हैव नॉट कैलकुलेटेड येट. N3 क्या रहा, कंफर्म करो उसे. 891. Calculate the D and the E part, come on. बातें नहीं. सॉरी, डी कैलकुलेट नहीं करा मैंने. डी बताओ, कैलकुलेट कर लिया तुमने? डी डी एंड ई पार्ट डन. N3 क्या आया? तो बस -891 प्लस 5 इंटू 93 प्लस 9 इंटू -9. ठीक है. And then N2 plus 5 N1 will be 933 into 93 into, wait. Okay, N2 is what? 93 plus 5 into -9. Done? Okay, fine. Next question, chalo. Okay, find the value. Wait a minute. वर्कशीट पे है. अच्छा, ये वर्कशीट पे है. Wait, find the value of, show me the worksheet. Let them calculate. ये अभी करा थोड़ी देर पहले, राइट? सेम क्वेश्चन करा, सेम टाइप करा. जल्दी, कम ऑन. अच्छा, मुझे लगा वर्कशीट मांग रहे. चलो लास्ट क्वेश्चन करो इसे, इसके बाद फिर छोड़ूंगी तुम लोग को. +8 होना चाहिए. या +8. +8 होगा वहां पे, कॉपी पे करेक्टिफाई कर लो. +8 होगा. सो इट विल बी, आई थिंक, no, wait a minute. आंसर विल बी 8. सबको ही फाइंड करो. चलो वेरीफाई करो. 8 आएगा सबका. यू हैव टू यूज द पावर सम.
ठीक है, आगे सबका 8 मिल गया सबको, ठीक है। तो अब जब अपने शीट पे जाओगे तो नेक्स्ट जो है वो आपके जो क्वेश्चन है वो टर्म्स पे आ गए, मतलब वहां पे Tn डिफाइन कर दिया गया, एंड Tn इज डिफाइंड एज अल्फा इन माइनस बीटा इन, टिल येट यू वर हैविंग एज अल्फा k प्लस बीटा k, बट नाउ यू आर हैविंग अल्फा इन माइनस बीटा इन। सो द Tn आल्सो फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, सेम पैटर्न होता है, जब तुम पावर सम के नोट्स पे जाओगे ना तो सेम पैटर्न फॉलो करता है, तो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। आई थिंक इट विल बी हाँ वो T9 कट जाएगा, देन इट विल बी अ सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। देन अगेन 19th खुद से करना, 19th इज अ गुड क्वेश्चन, एंड देन द 20th पार्ट, 20th भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों को 18th 19 20 यू हैव टू डू दैट, एंड देन यू हैव टू डू द 8 नंबर क्वेश्चन, बस इतना ही करना है, ठीक है।